خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو پھر ہم یہی کہیں گے. اب چیئرمین صاحب دوسری بات میں کہنا چاہوں گی, ٹائم بھی نہیں ہے میڈم, ذرا دوسروں کا بھی میں مختصر کہنا ہے, مجھے اختصار سے کہنا ہے, اور اس میں تھوڑا سا ربانی صاحب نے کافی بات کی ہے کل, کیونکہ میں اس بہت شاکنگ بات ہے اور یہ ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے کہ وہاں کھلا تضاد تھا کمیٹی میں 2.5 گھنٹے کھلا. میں آن دا فلور آف دس آگسٹ ہاؤس کہنا چاہ رہی ہوں, اور میں تائید کرتی ہوں ربانی صاحب کی تجویز کی کہ یہاں کمیٹی آف دا ہول ہونا چاہیے, کیونکہ اور تو کوئی یہاں کوئی انصاف دینے والا ہے نہیں, کوئی ملک چلانے والا نہیں ہے. آپ کی ایئر لائن کو اور بھی نوٹسز آ رہے ہیں چیئرمین صاحب, اور راستہ کل انہوں نے ہمیں سامنے کوئی نہیں دکھایا. ہم نے کہا بھائی, مجھے کسی نے کہا آپ استعفیٰ مانگ رہے ہیں, میں نے کہا ان کو اپنا موقف دینے دو, شاید ان کے ذہن میں کچھ اور ہے, یہ بڑا حساس معاملہ ہے. آپ چیئرمین کمیٹی سے پوچھ لیں, ایویشن کمیٹی سے, مشاہد اللہ سے, کہ 1.5 سال سے یہ ایشو آف فیک لائسنسز چل رہا ہے. ہم نے ان سے کہا ان لائسنسز اگر ہیں اور کوئی نئے یورپین سسٹم پہ ہو رہا تو آپ بتائیں کیا کرنا ہے. یہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ فکس کریں اور ذمہ داریاں فکس کریں اور اس کو سارٹ آؤٹ کریں. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, نہ کوئی ذمہ داری لے رہا ہے. واٹ واز شاکنگ, نماز بھی سر پہ, باقیوں نے بھی بات کرنی. ٹھیک ہے, وہ جواب ساتھ دے دیں. Nobody was taking responsibility for crashing PIA. کوئی منسٹر ذمہ داری نہیں لے رہا تھا. سول ایویشن کے وہاں سیکرٹری بیٹھے تھے ایویشن کمیٹی کی, کھلا تضاد تھا دونوں کے درمیان. 2.5 گھنٹے ان کی گرلنگ کی, nothing came out. کون چلا رہا ہے اس ایئر لائن کو؟ اور اب سنا ہے کہ آپ کی دوسرے پائلٹس خدا نہ خواستہ ہوائی ایئر فورس بھی ہے, ہمارے ایئر روٹس بھی ہیں, ان پر بھی سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے کہ یہاں کیا سیفٹی کے پروٹوکولز ہیں. اس کو چیک کریں فوراً اور سارٹ آؤٹ کریں. کل ہمیں کمیٹی میں یہ نہیں ملا. تھینک یو جی. لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. یہاں پر تفصیلی جواب دینے کا ٹائم نہیں ہے, مگر آج ایک بات کا مجھے احساس ہو گیا کہ سینٹ کے الیکشن کا جو ٹائم ہے اور جو کیمپین ہے وہ شروع ہو چکی ہے. محترمہ کی گفتگو کے بعد, اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ ان کی دوبارہ واپسی ہوگی جس شد و مت کے ساتھ, جس کے شد میں. اب آپ سنیں آرڈر. چانڈیو صاحب پلیز سنیں گے. سینیٹر روبینہ پلیز, لیڈر آف دا ہاؤس کھڑے تھے, اس ہاؤس کے نارمز ہیں, آپ نہ بات کریں جی. تشریف رکھیں, پھر اپنی باری پہ بولیں. تشریف رکھیں. اور یہ آپ بیٹھیں ہیں یہاں سنیں. جی آپ بتائیں. جی یہ آپ بیٹھیں, اب یہاں سنیں, یہ سنیں. آپ مجھے مخاطب کریں. جی آپ یہ بیٹھیں, یہ تشریف رکھیں پلیز. چانڈیو صاحب آپ یہ سنیں, اب یہ سنیں, نہیں سنتے تو جائیں. صاحب آپ اپنی تقریر کریں جی پلیز. جی جناب چیئرمین صاحب, یہاں پر محترم کی بات ہوئی, اور میں آپ کو ایک بات یقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی عادت پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا المیہ تھا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیاقت علی خان سے لے کر یہ ایک بڑی ہی تلخ اور دردناک تاریخ ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ محترمہ کی شہادت, اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اس کے بعد واقعہ دوبارہ نہ ہو. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس شہادت کے بعد جب انہی کی فیملی کو اقتدار ملا, صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب تھے, حکومت پیپلز پارٹی کی تھی, اور وہ لوگ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں پیچھے والی گاڑی میں تھے, اور بھی لوگ تھے پیچھے والی گاڑیوں میں, وہ بڑے بڑے عہدوں. کیا تحقیق ہوئی؟ اگر آپ نے خون کا, آپ نے شہادت کا تو اس کا بہتر طریقہ تو یہ تھا
उस चांडियो साहब प्लीज, मैंने तो बोल दिया उनको, आप वो ये बोल नहीं सकते, मैंने उनको बता दिया जी। जी मैं चाड़ियों साहब से गुजारिश करूंगा कि मेरी कोई गुजारिश सुन ले ना। इस तरह बात ना करें, चांडियो साहब अपनी सीट पे आ जाएं प्लीज। जी नहीं, मैं आपसे बढ़कर, जी जी प्लीज। मगर बात सुनने का हौसला तो पैदा करें। होना तो ये चाहिए था कि मोहतरमा की शहादत के बाद उस हुकूमत में मोहसिन अजीज साहब जाएं, जरा मना के लाएं प्लीज। जी जाएं आप, और अतमी आतिक शेख साहब ले आएं। जी 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 प्लीज आप कंटिन्यू करें। तो उस वाक़े की तहकीक आपके दौरे हुकूमत में होती और मुल्ज़मान को कैसे किरदार तक पहुंचाया जाता। जनाब चेयरमैन, पीआईए की बात हुई में, और ये दुरुस्त फरमाया रज़ा रब्बानी साहब ने। 2006 में यूरोपियन यूनियन ने सेफ्टी डेफिशिएंसी पे नोटिस लिया और 2007 में हमें पहली मर्तबा उस खिफत का सामना करना पड़ा। इस हकीकत से कोई कि चाहे पीआईए हो, चाहे स्टील मिल हो या दूसरे कौमी इदारे हों, कि गुज़श्ता अदवार में उनमें सियासी भर्तियां हुई, से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मेरिट की पामाली हुई। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अकरबा परवरी हुई, और यही वजह है कि ये इदारे बतदरीज ज़ुबो-हाली का शिकार होते रहे। वो शख्स भी रहे जो चेयरमैन होते हुए पीआईए नीचे, और उनकी अपनी एयरलाइन एस्टेब्लिश भी हुई और उसमें तरक्की भी हुई। जनाब चेयरमैन, जब हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करते हैं तो मैं एक बात वादा करना चाहता हूं कि अगर वहां से कभी तो हम बड़े दिल के साथ हमेशा उसको सुनते हैं और इंशाल्लाह, और हमारी तरफ से, और खुसूसन मैं अपनी बात करता हूं, अगर किसी लफ्ज की वजह से या किसी जेस्चर की वजह से मेरे किसी ऑनरेबल को किया कि वो, तो उनके एहतराम में मैं अपने वो उनसे माज़रत ख्वाह भी हूँगा और ये बताना चाहूँगा कि मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं। कुछ बातें यहाँ पर हम लाइटर टोन पे भी, ऑन द लाइटर साइड भी करते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि उनको उसी सेंस में लिया जाए, अल्फाज को ना पकड़ा जाए, उस कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए। हम आपस में कोलीग भी हैं और कोलीग से एक दूसरे के साथ इस किस्म की बात करते हैं। तो अगर मेरी वो बात सुन रहे हैं तो मैं गुजारिश करूंगा उनसे कि गुस्सा जाने दें और हाउस में वापस तशरीफ लाएं। जनाब चेयरमैन, चाबहार की भी बात हुई। मैं एक सवाल रखता हूं कि क्या चाबहार में भारत की मौजूदगी हमें वो हमारे कौमी मफाद में है, या वहां पर हमारे दोस्त मुल्क चाइना, उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, हमारे एक ब्रादर इस्लामी मुल्क, उनके साथ वो हमारे मफाद में है। शायद इनमें से एक चीज ही हो सकती है। तो हमें सियासी मुखालफत में, हुकूमत की मुखालफत में उस हद तक नहीं जाना चाहिए जहां पर हमारे कौमी मफादात जो हैं उन पर ज़्यादती हो। चाबहार में चाइना का जाना और ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मैं समझता हूं उससे खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। ग्वादर और चाबहार
ये इंशाल्लाह सिस्टर सिटीज बनेंगी और ये तमाम खिता मिलकर तरक्की के मनाजिल तय करेगा। जनाब चेयरमैन, यहाँ पर ऑनरेबल सेनेटर मुशाहिदुल्लाह और कई दूसरों ने भी बारहा रियासत मदीना की बात की। मैं वजाहत के साथ एक बात रखना चाहता हूँ कि अगर तो हम रियासत मदीना में रह रहे होते और ये मुल्क रियासत मदीना होता तो फिर तो किसी चीज़ की गुंजाइश बाकी नहीं थी। जब हम बात करते हैं रियासत मदीना की तो वो हम एक रोल मॉडल को डिफाइन करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम इंच बाय इंच, आहिस्ता आहिस्ता, एक एक कदम हम उस जानिब उठाएं, और क्योंकि हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपके सामने एक रोल मॉडल होता है। कुछ हमारे दोस्त वो कहते हैं नॉर्वे का रोल मॉडल, कुछ कहते हैं अमेरिका है, कोई कहता है चाइना है, मगर हम समझते हैं कि हमारे नज़दीक फलाही रियासत का रियासत मदीना से बड़ा रोल मॉडल नहीं हो सकता। बेशुमार कमियां हैं, बेशुमार इस वक्त चीज़ें करने की ज़रूरत है, मगर जब आपका मॉडल बड़ा होता है तो आपका हौसला भी बढ़ता है और आप बतदरीज उस तरफ जाते हैं और आप उन प्रिंसिपल्स की असल में बात कर रहे होते हैं जो कि फलाही रियासत के प्रिंसिपल्स हैं। और फलाही रियासत के प्रिंसिपल्स इंसानी तारीख में सबसे पहले रियासत मदीना में रख के दिखाए गए, और ये जो मुल्क जिनकी हम मिसालें देते हैं इन्होंने वही प्रिंसिपल्स अपनाए, उन्हीं प्रिंसिपल्स को लेकर आज वो वेलफेयर स्टेट्स बने हैं। तो हम डायरेक्टली अपने आप को उनके साथ क्यों ना जोड़ें और हम आगे क्यों ना बढ़ें। आखिर में मिस्टर चेयरमैन, मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत और अपोजिशन, हमारे पॉलिसीज पे इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे तरीक़ाकार के ऊपर इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर जहाँ पर कौमी मफादात हो, जहाँ पर सीपेक जैसे मंसूबे की बात हो, जो कि एक अच्छी बात हमारी सियासी तारीख में है जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिनमें पाकिस्तान ने ये साबित किया कि मुख्तलिफ हुकूमतों के अंदर भी कौमी मफाद के तहत उन चीज़ों के में कंटिन्यूटी रही। न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे पहला था। कश्मीर का इशू है, अक्रॉस द पार्टी डिवाइड, अक्रॉस द गवर्नमेंट, उसमें हमेशा सब एक पेज पर रहे। और इसी तरह सीपेक भी अब वही मौजू है कि जिसमें अक्रॉस द पार्टी लाइन और एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत तक हमसे पहले भी, हम भी, हमारे बाद भी, इंशाल्लाह ये मुल्क भी रहेगा और ये तरक्की के मंसूबे और ये फलाह के मंसूबे ये भी चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, सेनेटर मोहम्मद अली सैफ साहब बात करना चाहते हैं या नहीं? सर, असल में मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन अब टाइम बिल्कुल नहीं है। टाइम तो नहीं है जी। जी, तो मुझे फिर कर लें जी नेक्स्ट। जी, सेनेटर खानजादा साहब, जीशान खानजादा साहब। शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने मौका दिया। चेयरमैन साहब, जो आज कॉलिंग अटेंशन था उस पर तो बेशक हुकूमत ने अपनी राय दे दी है, लेकिन मैं 1 मिनट में सिर्फ एक पर्सनल कैपेसिटी में बस ये शेयर करना चाह रहा था कि अगर ऐसा कोई आइडिया हो भी तो इसके ऊपर बात ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इसके अपने फ़वाइद हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं समझता हूँ इसका होगा कि अगर एज जो है तो वो रिटायरमेंट की 55 साल हो, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमारी यूथ को होगा, जो हमारी मुल्क के नौजवान हैं। क्योंकि आजकल अगर सैकड़ों या हज़ारों के हिसाब से लोग रिटायर हो रहे हैं हर साल, तो लाखों के हिसाब से जो है तो हमारी यूथ जो है तो वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस पे नज़रसानी होनी चाहिए। और आजकल मैं समझता हूँ कि जो हमारे गवर्नमेंट जितने भी इदारे हैं उनमें काफ़ी ओवर एम्प्लॉयमेंट हुई है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो अगर कोई कह रहा है कि सैलरीज और पेंशन्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, अगर ये ओवर एम्प्लॉयमेंट ना होती तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब जो पीटीआई की गवर्नमेंट है तो इनकी यही एक
पॉलिसी और प्रोगेटिव ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट है तो वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होनी चाहिए, और मैं भी उसका बहुत सपोर्टर हूँ। एंड में सर मैं जो पॉइंट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस है वो ये है, आजकल अल्लाह के फजल से काफ़ी डैम्स की इफ्तिताह हो रही हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। डैम्स जो हैं तो उनको पहले प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी पिछले गवर्नमेंट्स में, और अब दी जा रही है। तो मैं इसके हवाले से ये कहूँगा कि गवर्नमेंट अगर इसके लिए कोई प्लान ये हो कि फंडिंग जो गवर्नमेंट इसके लिए कर रही है कि वो किस लिहाज से, क्योंकि अगले 10 साल में जो इसकी फंडिंग है अगर वो स्मूथ रनिंग हो तो ये बड़ी अच्छी बात है, और इसके कोई प्लान हो गवर्नमेंट के पास तो वो ज़रा शेयर करें हमारे साथ। अगर ना हो तो उस पर बात होनी चाहिए कि ऐसा प्लान बने कि अगर कल को कोई और हुकूमत भी आए तो वो जो फंडिंग है तो उसमें कोई स्टॉपेज ना आए। तो ये मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। The House stands adjourned to meet again on Monday, the 28th July 2020 at 4 p.m. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम टीवी क्लिनिक साण करे तव्हांजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमौर हाज़िर आहे। नाज़रीन, तव्हां खबर थियण प्रोग्राम में असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾींदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ महिमान डॉक्टर असां सां गॾु हूंदा आहिनि। अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा कोरोना वायरस बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सॼी दुनिया में इहा वबा फैलियल आहे, असांजे मुल्क में मौजूदु आहे। कोरोना वायरस जे बचाव जे बारे में बि तव्हांखे काफ़ी ॼाण ॾिनी वञे थी पई। उन सां गॾोगॾु उनजो इलाज जी जेका तरीक़ा आहिनि उहे, या माण्हुनि खे कीअं हिक ॿिए खां सोशल डिस्टेंस करिणो आहे, पंहिंजे घर जी हिफ़ाज़त कीअं करणी आहे, पंहिंजे मुआशरे जी, पंहिंजे मोहल्ले जी, पंहिंजे इलाइक़े जी कीअं करिणो आहे। ऐं चयो वञे थो सॼी दुनिया में इन बीमारी जी तेज़ी खे या कोरोना वायरस जी जेका स्पीड खे रोकण लाइ सोशल डिस्टेंस ते अमल कयो थो वञे त माण्हू ॿिए खां परे रहनि। छो त हर माण्हू, हर फ़र्द जेको जिते बि आहे पंहिंजे घर लाइ बि वॾी अहमियत रखे थो, पंहिंजी फैमिलीअ लाइ वॾी अहमियत रखे थो, पंहिंजे मुआशरे लाइ, पंहिंजे मुल्क लाइ वॾी अहमियत रखे थो। त हर माण्हू जो पंहिंजी जॻह ते कमु आहे। त सोशल डिस्टेंस जो मतिलबु इहो आहे त जेकॾहिं कंहिंखे वायरस आहे या हिन मुआशरे में या असांजे फ़िज़ा में या असांजे एनवायरमेंट में जेकॾहिं वायरस हले थो त कंहिंजे हथ ते कंहिं जेकॾहिं लॻी थो वञे, कंहिं कपिड़े ते लॻी थो वञे, कंहिं अहिड़ी शइ ते लॻी थो वञे, त उहा जेकॾहिं कंहिं ॿिए माण्हू खे लॻे थो त उहो वायरस उस ताईं पहुची थो वञे। इन करे माण्हुनि खे महदूद कयो वियो आहे त हिकु जॻह खां ॿी जॻह ते इहो वायरस तेज़ी सां न पहुचे। तव्हां ॾिसो चाइना खां वायरस शुरू थियो, सॼी दुनिया में पहुची वियो। पहुचण जो ज़रियो कहिड़ो? इंसान हुआ। उहे इंसान जेके उते मौजूदु हुआ उहे ॿिए मुल्क में विया, उते उन्हनि माण्हुनि खे वायरस मिलियो, उतां ॿियनि खे मिलियो। इन करे सोशल डिस्टेंस ते जेको गवर्नमेंट असांखे चवे थी, जेका हुकुम चए उन ते असांखे पाबंदीअ सां अमल करणु घुरिजे। छो त असांखे पंहिंजी जान, पंहिंजे घर जी, पंहिंजे औलाद जी, पंहिंजे ॿारनि बचनि जी, पंहिंजी फैमिली जी, पंहिंजे इलाइक़े जी जान सभिनि खां प्यारी आहे। इन करे असांखे गवर्नमेंट जे इन्हनि सभिनी एहतियातनि जेके WHO जा रिकमेंडेशन आहिनि सॼी दुनिया में आहिनि त पंहिंजे घर में रहो, पंहिंजे घर जो बि ख़्यालु रखो, पंहिंजे माशरे जो बि ख़्यालु रखो। मिलणु जुलणु ठीकु आहे, हर कंहिंजा पंहिंजा जेके से हिकिड़ा तरीक़ेकार आहिनि, हिकिड़ो कल्चर आहे, पर जॾहिं का अहिड़ी वबा हुजे त उन कल्चर खां कुझु अर्से लाइ जेकॾहिं परे थी वञे त इहो असां लाइ फ़ाइदेमंद आहे। ॾाढी ज़बरदस्त गवर्नमेंट जेके इंतज़ामात कया आहिनि उन्हनि मां असांखे मुकमल फ़ाइदो वठणु घुरिजे। कहिड़ा खाधा खाइणु घुरिजनि, कीअं पंहिंजी हिफ़ाज़त करणु घुरिजे, कहिड़ो इलाजु करणु घुरिजे, उनखां पोइ जेके मुख़्तलिफ़ गवर्नमेंट जा सेंटर आहिनि उन्हनि मां कीअं